Yes, recording has started. Now I can start my session. Let me share the screen. Yes. Is it the screen visible to everyone? Yes, thank you so much. Thank you so much. Yes. So your today's topic is what, students? Topic name is what? Time, speed, and distance. Please write down this: time, speed, and distance. Yes. Just a moment. Yes. Okay, now students, see what do you mean by distance? See, remember formula. मैं आपको कुछ explain करता हूँ. See, what is distance? Distance is nothing but what, students? Speed into what? Time. Clear everyone? This ये formula आपको याद रखना है. That's it. What is the formula of distance? Distance, which is equal to what? Speed into time. Once you remember this formula, with the help of this formula, we can derive two more formulas. One, एक formula होगा, what is speed is equal to? That is nothing but distance upon what? Time. ये सबको clear हो गया? Speed यहीं पर रहेगा, time नीचे आ जाएगा. And second formula we can get यहाँ पर, time is equal to what? Distance upon speed. Yes, clear this everyone? So यहाँ पर एक major formula है, distance which is equal to speed into time, and then speed is equal to what? Distance upon time, and second, time is equal to what? Distance upon speed. Yes, clear this everyone? Yes, अगर आपको clear हो रहा है तो आप immediate yes कर दीजिए ताकि मैं आगे जाऊंगा. आप लोगों ने लिख लिया है? Yes, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. Yes, thank you so much. Okay, now students pay attention. Yes, distance हम, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, हम किससे मेजर करते हैं? आइदर किलोमीटर और मीटर. यस और नो? स्पीड हम किससे मेजर करते हैं? स्पीड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड. और हम टाइम किससे मेजर करेंगे? टाइम एक तो आवर या मिनट या सेकेंड. राइट डाउन दिस. डिस्टेंस कैन बी मेजर इन किलोमीटर. सो दीज आर द व्हाट यूनिट्स ऑफ दिस. डिस्टेंस का यूनिट क्या है? आइदर किलोमीटर और मीटर. स्पीड का क्या है? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? किलोमीटर पर आवर kph भी लिख सकते हैं, या किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड को mph ऐसे भी लिख सकते हैं. Yes. And time measure in what? Hour, minute or second. These are the what units of what? Distance, speed and time. Clear this everyone? Yes. Great. Thank you so much. Yes. Now pay attention students. यहाँ पर देख लीजिए. Now tell me students, 1 hour is equal to how many minute? 1 hour is equal to कितना मिनट होता है? 60 मिनट. वेरी गुड.
1 minute is equal to how many seconds? 1 minute is equal to how many seconds? Exactly 60 seconds. Yes. So finally 1 hour is equal to how many seconds होंगे? 1 hour is equal to how many seconds? 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 hour is equal to कितने seconds होंगे? 60 into 60. That is nothing but 3600 seconds. Yes. Clear everyone this? That is 3600 seconds. Yes. Great. Yes. Hope this is clear everyone. Okay. Now if I ask you reverse in the sense what, अगर 1 hour is equal to 60 minutes है स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए 1 minute is equal to how many hour? If 1 minute is equal to 60 seconds है तो 1 second is equal to how many minutes? अब मैं आपको रिवर्स पूछ रहा हूं. And 1 second is equal to how many hour? Yes. So now students pay attention. See, this is very important. अगर 1 hour का मतलब 60 मिनट होता है तो 1 मिनट का कितना आवर होगा? रिवर्स कर देना है 1/60. बस इतना ध्यान में रख लीजिए. अगर 1 मिनट का 60 सेकेंड है तो 1 सेकेंड का कितना मिनट होगा? 1/60 सेकेंड्स. और यहां पर हो जाएगा 1/3600. क्लियर दिस एवरीवन? यस. आदित्य, क्लियर दिस? आदित्य, मंजूषा, प्रज्वल? यस. दिस इज वेरी सिंपल. चलो नाउ सी, यहां पर अगर आपका स्पीड है, सपोज इफ यू हैव अ स्पीड विच इज गिवन इन x किलोमीटर पर आवर, और उसी स्पीड को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में या वाइस वर्सा. किलोमीटर पर आवर का स्पीड है आपका, एक स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड में दिया और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. तो आपको क्या करना है, ये जो स्पीड दिया है x, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से. इफ यू मल्टीप्लाई given speed by 5/18, then kilometer per hour will get converted into what? Meter per second. Same way, if it is given in meter per second and the situation demands कि मीटर पर सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? इसका रिवर्स कर देना 18/5. इसको लिख लीजिए कहीं पर. दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? स्पीड. यस. इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं. देयर इज नथिंग, कुछ खास नहीं है. देखो, अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और उसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में या वाइस वर्सा, तो आप क्या करोगे? इस स्पीड को मल्टीप्लाई बाय करोगे 5/18 से और यहां पर मल्टीप्लाई होगा 18/5 से. बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5/18 कहां से आया. फ्रॉम वेयर डिड दिस 5/18 कम्स? सो नाउ पे अटेंशन. सी, कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए. किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, यहां पर कुछ नहीं तो 1 होगा. 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर विच इज इक्वल टू, मुझे किस में कन्वर्ट करना है उसे? मीटर पर सेकेंड में. मीटर पर सेकेंड. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, 1 kilometer which is equal to how many hour? Sorry, 1 kilometer which is equal to how many meter? Fast. 1 किलोमीटर का कितना मीटर होता है? एग्जैक्टली ये होगा 1000 मीटर. वेरी गुड नितेश, ये हो जाएगा 1000 मीटर. तो आप लोग क्या करोगे? यहां पर आप लोगों ने 1000 लिख दिया. एंड एज आई सेड, 1 hour is equal to how many seconds? 1 hour is equal to how many seconds students? 3600 seconds. उसको यहां पर नीचे लिख दो. यस. अब देख लीजिए, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो एडेंड बचा क्या? 10/36 विच इज मीटर पर सेकेंड. नाउ 10/36 इफ आई डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 2 18. तो एडेंड आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? 5/18 मीटर पर सेकेंड. क्लियर एवरीवन दिस?
तो ये 5/18 समझा आपको कहां से आया? जब मैं किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। होप दिस क्लियर एवरीवन? यस। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट। तो यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पर अगर सपोज आपका स्पीड दिया है 108 किलोमीटर पर आवर दिया है, ओके, और आपको फाइंड करना है इन मीटर पर सेकेंड। यस, कैसे करोगे? बोलो क्या होगा अभी? टेल मी फास्ट। यस, तो कितना होगा आप सभी को पता है, एज वी हैव सेड व्हाट, अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड में चाहिए और ये आपको दिया है किलोमीटर पर आवर, सो आप क्या करोगे? 108 को किससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स? 5/18 से। तो ये स्पीड किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। 18 वन जा 18, 6 जा, तो 6 इंटू 5 कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर एवरीवन? दिस इज दिस क्लियर? यस। तो जब तक आप आपकी यूनिट देखो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखना है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, सी अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपका स्पीड भी किस में होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर डिस्टेंस मीटर में है तो आपका स्पीड भी किस में चाहिए? मीटर पर सेकेंड में। इज दिस क्लियर? तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर पे है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में रहेगा? टाइम आवर में। आवर में होगा, और ये टाइम किस में होगा? सेकेंड पे। तो सारे आपके ये जो यूनिट्स है, ये सारे यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए, तभी आपका आंसर राइट आएगा। Yes. ये आप लोगों ने लिख लिया? Yes. ये सबको क्लियर है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? आदित्य, शुभम, कपिल, अनुष्का, भारती, किरण? Yes. चलो, क्लियर दिस एवरीवन? चलो, नाउ सी, अब यहां पर देख लीजिए, एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? अगर आपको एक एवरेज स्पीड निकालना है, ध्यान में रख लीजिए, हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड? इफ अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, सपोज अगर ये डिस्टेंस है, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे सर्टेन डिस्टेंस, जिसको मैंने डी पकड़ लिया है। इफ अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज कवर्ड एट ए किलोमीटर पर आवर, ए टू बी वो जा रहा है स्टूडेंट्स ए किलोमीटर पर आवर, ए किलोमीटर पर आवर, एंड सेम डिस्टेंस इज कवर्ड अगेंस्ट फ्रॉम बी टू ए, यहां से बी टू ए एट व्हाट? बी किलोमीटर पर आवर। क्लियर एवरीवन? देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी हमें निकालना है। अब देखो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके, तो मैं यहाँ पर इसको मैं अलग नंबर देता हूं, क्योंकि ऊपर ए और बी पकड़ा है हमने, तो यहाँ पर मैं इसको एक्स पकड़ता हूँ, ये पकड़ता हूँ वाई। तो
एक person moving from A to B at a speed of what? X km/h. Other person moving from B to A, or we can say same person moving from B to A at a speed of what? Y km/h. तो ये स्पीड है. तो पूछा है कि what is going to the whole like average speed during the whole journey. तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है which is very simple. 2xy upon x plus y. Write down this formula. What is x and y? X is what? Speed of that person moving from A to B, and speed of the person moving from B to A, but both the speeds are what? Different. Remember this. Clear everyone this? Okay, last line यहां पर देख लीजिए. Average speed is what? If a person moving from A to B at a speed of x km/h, other person moving from B to A at a speed of y km/h, then the average speed of the whole journey क्या होगा? 2xy upon x plus y. ये केस में दोनों स्पीड कैसे है? डिफरेंट है, ये ध्यान में रख लीजिए. x भी अलग है, y भी अलग है. Hope this clear everyone. आदित्य clear this. विजय, भारती, कपिल. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ सपोज यहां पर एक डिस्टेंस है, ये कंडीशन समझ लीजिए. इफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड एट द रेट ऑफ v1 इन टाइम t1. ये आपका फर्स्ट पार्ट है, समझो. ये सपोज a है और ये b है, और इसको मैंने समझो पकड़ लिया d. तो ad ये फर्स्ट पार्ट हो गया और db ये सेकेंड पार्ट हो गया. तो फर्स्ट पार्ट कवर्ड एट द रेट ऑफ v1, मतलब स्पीड यहां पर v1 है, और कितने समय में क्रॉस हो रहा है वो? t1 में. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड एट द v2 के स्पीड से, और कितने समय में कवर हो रहा है? t2 टाइम t2. तो हमें पूछा है एवरेज स्पीड. यहां पर आपका एवरेज स्पीड क्या होगा स्टूडेंट? देखो, तो एवरेज स्पीड यहां पर आपको याद रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बस इसे ध्यान में रख लीजिए. अब टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या क्या है? देखो, एडी इज व्हाट? एडी इज नथिंग बट डिस्टेंस d1, और db इज नथिंग बट डिस्टेंस d2. पकड़ लो. तो टोटल डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? t1 t2. तो ये हो गया t1 प्लस t2. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज d1? d1 इज नथिंग बट व्हाट? d1 डिस्टेंस है, तो ये है स्पीड और ये है टाइम. तो v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड t1 प्लस t2. राइट डाउन, दिस इज द फॉर्मूला. यस. अगर एक डिस्टेंस को वो पार्ट पार्ट में कवर करता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. बस इसे याद मत रखो, जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे बना सकते हो. इज दिस क्लियर एवरीवन? भारती, कपिल, आदित्य, शुभम, किरण. ओके, चलो नाउ विल सी सम क्वेश्चंस करते हैं कुछ.
Okay, chalo next. Now we'll see some questions on it. Yes. Students, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो. A train runs at an average speed of 75 km per hour. If the distance to be covered is 1050 km, then how long will the train take to cover it? आपको खाली टाइम निकालना है. क्या होगा बोलो मुझे. सिंपल फॉर्मूला है. A train runs at an average speed. अपने को स्पीड दिया हुआ है. What is speed given here? Yes, very good, Deep. Speed is given 75 kph. We have distance is what? 1050 किलोमीटर हमें दिया हुआ है. And then we can time का फॉर्मूला क्या है? Time is equal to what? Distance upon speed. What is distance, students? 1050 divided by what? 75. Clear this, everyone? So answer is going to be a what? 14 hours. Yes. Option number C. Clear, everyone? अब यहां पर देखो हमने क्या किया स्टूडेंट्स. यहां पर हमें यूनिट्स चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी सेम यूनिट. देखो ये किलोमीटर पर आवर है, तो मेरा डिस्टेंस भी किलोमीटर पे होना चाहिए और मुझे टाइम भी किसमें पूछना चाहिए? आवर में होना चाहिए. तो सारे यूनिट सेम थे, तो हमने खाली वैल्यू पुट कर दिया. क्लियर दिस एवरीवन? ग्रेट. अगर वो क्लियर है तो स्टूडेंट्स ये वाला 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करो. Two men P and Q start from a place walking at 5 km per hour and 6.5 km per hour. What is the time they will take to be a 29 km apart if they walk in opposite direction? अब यहां पर देखो दो चीजें आपको समझा देता हूं. बहुत ये टॉपिक बहुत अच्छा है स्टूडेंट. Two men P and Q start from place walking 5 km per hour and 6.5 km per hour. What is the time they will take to be a 92 km apart if they walk in opposite? मतलब सपोज यहां पर let us assume ये डिस्टेंस है and distance is which is 92 km per apart, right? 92 km apart from each other. यहां पर एक P है और यहां पर एक Q है. P स्टार्ट कर रहा है टुवर्ड्स Q, अपोजिट बोला है, मतलब एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा अपोजिट. अब ओके, ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रहा है स्टूडेंट 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस. अब देख लीजिए हमें करना क्या है कि जब वो अपोजिट कहते हैं तो पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. ये कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेटिव स्पीड. इसको लिख लीजिए रिलेटिव स्पीड. यस. व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? व्हेन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स moving in opposite directions. Opposite. ओके. तो उनके जो स्पीड होते हैं S1 प्लस S2 हो जाएंगे. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. क्लियर एवरीवन? किलोमीटर पर आवर. दोनों स्पीड का एडिशन होगा. अगर दोनों स्पीड चल रहे सेम डायरेक्शन में, अपोजिट और सेम डायरेक्शन. सेम मतलब दोनों ऐसे जाएंगे या दोनों ऐसे जाएंगे. क्लियर दिस एवरीवन? सेम डायरेक्शन में तो उनका स्पीड क्या होगा? माइनस होगा. S1 माइनस S2. इट डिपेंड्स कि कौन सा स्पीड बड़ा है, उसमें से छोटा वाला माइनस होगा. किलोमीटर पर आवर. अज्यूमिंग दैट व्हाट? S1 इज ग्रेटर देन S2. ये वाले केस में राइट डाउन दिस.
क्लियर दिस एवरीवन? सो आपको क्या पता चला कि when two things are moving in opposite directions, their speeds are going to be what? Added. When two things are moving same direction, so their speeds are going to be what? Minus. Hope this clear? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं स्टूडेंट। यस, तो अब यहां पर देख लीजिए, टू मेन पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग, तो ये देखो दोनों अपोजिट चल रहे, अपोजिट चलोगे तो उनका डिस्टेंस क्या होगा? ऐड हो जाएगा। फिर पानी का माइक बंद करा। ओके, सो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है? ऑलरेडी 92 किलोमीटर बोला हुआ है, डिवाइड बाय, अब ये अपोजिट बोला है तो स्पीड क्या होगा? ऐड होगा, 5 प्लस 6.5, सो 92 अपॉन ये हो जाएगा 11.5, विच इज नथिंग बट 920 अपॉन 115 होगा। क्लियर एवरीवन? तो मैंने आफ्टर पॉइंट देयर वाज वन डिजिट, सो आई हैव रिमूव्ड द पॉइंट एंड आई हैव टेकन 0 ऑन अपर साइड। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? व्हेन यू मल्टीप्लाई 115 into 8, सी अगर आप 115 into 8 करोगे, 8 5 is 44 कैरी, 11 8 is 88 plus 4 92, so 920 आंसर आएगा देखो आपका। तो ये हो जाएगा, आंसर हो गया 8 आवर्स। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? सो यहाँ पर खाली कॉन्सेप्ट क्या था? बस अपोजिट में चल रहे उतना ही कॉन्सेप्ट था, तो उसको खाली ऐड कर, बाकी यहाँ पर कुछ अलग नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ फादर एंड हिज सन, नाही 8ने स्वाती ते मल्टिप्लाय मी करून दाखवलं, म्हणजे ते 8ने मल्टिप्लाय केल्यावरतीच आन्सर येत आहे ना। 8ने मल्टिप्लाय काय केलं? कारण सी आपला क्वेश्चन काय होता, टाइमचं काय मिळालं होतं? 92 अपॉन 11.5 भेटलं होतं, राईट? मग हा पॉइंट वर गेला 0, मग 920 अपॉन 115 होतं, ऑप्शनला 8 होते। क्लिअर? मग से म्हणजे तू 115 ला 115 इंटू 8 कर, तर तुला किती मिळणार? 920 मिळणार, म्हणजे 115 8 जा 8 येणार। क्लिअर स्वाती? यस। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। A father and his son start at a point A with a speed of 12 km per hour and 18 km per hour respectively and reach another point B. देखो स्टूडेंट, अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां से यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। क्लियर दिस एवरीवन? यस। सेकेंड, यहां पर फादर है और यहीं पर सन है, दोनों यहीं से यहां जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, मतलब दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये डिस्टेंस को मैं पकड़ लेता हूं x किलोमीटर, ये मैंने पकड़ लिया x किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में ही निकलेगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या है। फादर एंड हिज सन स्टार्टेड पॉइंट ए विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर। फादर चल रहा है 12 kph से, बेटा चल रहा है 18 kph से। किसका स्पीड ज्यादा है स्टूडेंट? टेल मी फास्ट। यस, ऑब्वियसली सन का है। इट मीन जिसका स्पीड ज्यादा है वो सबसे जल्दी पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली सन विल रीच अर्ली। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ सन स्टार्ट 60 मिनट्स आफ्टर हिज फादर, if his son starts 60 minutes after his father at A, मतलब सपोज समझ लीजिए अगर फादर ने 5 बजे भागना चालू कर दिया, तो ये कितने बजे भागेगा? 6 बजे। क्लियर एवरीवन दिस?
अगर ये 5 PM भागना स्टार्ट कर देता है तो ये उसके 1 घंटे मतलब 6 बजे भागना चालू कर देता है। एंड रीचेस बी 60 मिनट बिफोर हिज फादर। अब यहां पर देखो, अगर फादर पहुंचता है यहां पर 7 बजे, सॉरी समझो फादर यहां पर पहुंचते हैं 8 बजे, तो ये कितने बजे पहुंचेगा स्टूडेंट्स? 16 मिनट बिफोर, मतलब ये पहुंचेगा 7 बजे। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो मुझे बताइए टोटल टाइम का टोटल टाइम का डिफरेंस कितना होगा? बोलो मुझे, टोटल टाइम का डिफरेंस कितना होगा? देखो यहां पर कितना है एग्जैक्टली प्रीति, यहां पर होगा 1 आवर और यहां पर भी होगा 1 आवर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 आवर्स का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? यस कर दीजिए। ये अगर क्लियर हो गया तो ये सबसे आसान है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो इससे इजी कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। यस, तो ये 2 आवर्स क्या है स्टूडेंट? दिस इज 2 आवर्स नथिंग बट व्हाट? अ डिफरेंस बिटवीन फादर टाइम एंड सन टाइम। क्लियर एवरीवन दिस? देखो यहां पर स्टूडेंट्स, देखो यहां पर शुभम हमने क्या किया है, यहां पर फादर का स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, सन का स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। ये लोग कह रहे हैं इफ सन स्टार्ट 60 मिनट्स आफ्टर हिज फादर एट ए, मतलब अगर फादर 5 बजे चलता है तो सन चलेगा 6 बजे, मतलब 1 घंटे के डिफरेंस के बाद। और वो दोनों बी पे पहुंचते हैं, लेकिन कब पहुंचते हैं? 60 मिनट बिफोर हिज फादर। मतलब ये जो सन है वो निकलता भी 1 घंटा लेट और पहुंचता भी 1 घंटा पहले है। मतलब टोटल टाइम दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आवर यहां पर, 1 आवर यहां पर, तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आवर्स का। यस, क्लियर एवरीवन? अब ये 2 आवर्स का डिस्टेंस मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट व्हाट? टाइम टेकन बाय द फादर। यहां पर टाइम टेकन बाय द फादर एंड टाइम टेकन बाय द सन, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का। ये आपको मिल गया इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? अब टाइम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज टाइम फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल टू 2 आवर्स। डिस्टेंस को तो हमने एक्स पकड़ा है तो एक्स भर दो, एक्स अपॉन स्पीड कितना है फादर का? 12 माइनस एक्स अपॉन स्पीड कितना है सन का? 18 विच इज इक्वल टू 2 आवर्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18x माइनस, यहां पर देखो 18x माइनस 12x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 18। ये दोनों चीजें यहां पर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अब 18 में से 12 गया स्टूडेंट्स, कितना बचेगा? 18 में से 12 गया, आई राइट हियर 6x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 18। सो 6 2 ज़ा 12, तो फाइनली 4 इंटू 18 कितना होगा? 72 किलोमीटर। राइट डाउन दिस। तो ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है, ये आपको समझना जरूरी है। देखो ये वाला, ऐसे वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको हायर लेवल एग्जाम में आते हैं। यस, ग्रेट। लिख लिया आप लोगों ने इसे? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके शुभम लिख लीजिए, एंड देन अगर आपका हो गया तो मुझे यस कर दो, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं।
चलो डन दिस. ओके ओके. नाउ स्टूडेंट्स, ओके ओके, नाउ डू इट क्वेश्चन नंबर 7. ओके, नो प्रॉब्लम आदित्य, नो प्रॉब्लम. यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग. यस, नाउ यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए. With a uniform speed, a car covers the distance in 8 hours. एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक कार एक डिस्टेंस को 8 घंटे में कवर कर रही है. हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, had the speed been increased by 4 kilometer per hour, the same distance could have been covered in 7 hours and 30 minutes. The same distance could have been covered in 7 hours and 30 minutes. Then what is the distance? What is the distance covered? तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. देखो अब यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर सपोज देखो यहां पर मैं आपको ये समझा देता हूं. सपोज ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जिसको हम पकड़ लेते हैं x किलोमीटर. x किलोमीटर पकड़ लिया. क्लियर एवरीवन? विथ यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर डिस्टेंस इन 8 आवर्स. एक स्पीड, सपोज अगर एक स्पीड आपका है x के ph है, स्पीड किलोमीटर पर x है, वो स्पीड से ये डिस्टेंस कितने में कवर हो रहा है स्टूडेंट्स? 8 आवर्स में. क्लियर? बट नेक्स्ट क्या, हैड स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर. जहां पर x किलोमीटर पर आवर था, तो ये पहला कंडीशन ये है. व्हाट इज सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स? हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर. तो मुझे बोलो नया स्पीड क्या होगा? एग्जैक्टली प्रणीत, वेरी गुड. तो नया स्पीड हो जाएगा x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर. देन द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स. 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स मतलब स्टूडेंट्स आई कैन राइट 15/2 आवर्स. यस और नो? यस और नो? 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स मीन व्हाट? 7.5 ना. तो 15/2 का मतलब भी कितना होता है? 7.5 ही होगा. यस. तो आप देख लीजिए स्टूडेंट, तो यहां पर आपको डिफरेंस किससे मिल रहा है? यहां पर आपको डिफरेंस किससे मिल रहा है? डिफरेंस जो आपको मिल रहा है यहां पर किससे मिल रहा है स्टूडेंट? स्पीड से मिल रहा है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. तो यहां पर देख लीजिए, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, कितना डिफरेंस है बोलो फास्ट? कितना डिफरेंस है दोनों स्पीड में? ये वाला 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया है ना, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू व्हाट? 4. डिस्टेंस को हमने x पकड़ा है तो यहां पर x लिख दो. अपॉन टाइम कितना है? पहले वाले, आपको एक चीज बता देता हूं, अगर बीच में स्टूडेंट्स माइनस होगा तो ये वाले पहले वाले में नीचे हमेशा छोटा वाला वैल्यू लिखना है. तो 8 और 7.5 में छोटा कौन है? 7.5. तो पहले उसे लिख देना, हमेशा ध्यान में रख लीजिए, तभी आपका आंसर पॉजिटिव में होगा. तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस एक्स अपॉन टाइम कितना है? 8 आवर्स विच इज इक्वल टू 4. दिस कैन बी रिटन एज 2x अपॉन 15 माइनस, क्योंकि 2 पर चला जाएगा, x upon 8 which is equal to 4. Now when you do cross multiplication, what you will get? 8 to the 16x, I'll write here 8 to the 16x minus 15x which is equal to 15 into 8 into 4. Yes or no? 16 में से 15 गया, बचा स्टूडेंट x, और ये मल्टीप्लाई करो 15 4 ज़ा व्हाट? 60. 60 into 8 480. तो आपका आंसर कितना है स्टूडेंट्स? 480 किलोमीटर. राइट डाउन दिस.
Clear this? Yes, Shubham, you can ask. If you have doubts, you can ask Shubham, no problem. ओके स्टूडेंट, देखो आइए, शुभम ने सही क्वेश्चन पूछा है। करण शुभम, हमने यहां पर ये क्यों लिया है? बिकॉज आपका यूनिफॉर्म स्पीड हमने x पकड़ा था और बाद में स्पीड इंक्रीज हो गया है 4 किलोमीटर से, मतलब ये हो जाएगा x+4। तो समझो ये वाला स्पीड अगर 10 है तो ये वाला शुभम कितना है 14, तो दोनों में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट? शुभम 4 का। क्लियर अभी शुभम? चलो ग्रेट, ओके, आप लोगों ने लिख लिया ये? यस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू पर्सन्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू प्लेसेस C kilometer apart and walk in the same direction. If A travels at the rate of P kilometer per hour and B travels at the rate of Q kilometer per hour, then A has traveled before he overtakes B a distance of. क्या हो सकता है इसका आंसर? टू पर्सन्स ए एंड बी, देखो यहां पर समझा रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस, दिस इज व्हाट, टू प्लेसेस कितना किलोमीटर अपार्ट है? C किलोमीटर अपार्ट, तो ये C किलोमीटर अपार्ट। वॉक इन द सेम डायरेक्शन मतलब यहां से एक आदमी ए यहीं पर जाएगा और बी आदमी भी यहीं पर जाएगा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने आपको बताया सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा? माइनस होगा। वॉक इन द, इफ ए ट्रेवल्स, ए का स्पीड है P किलोमीटर पर आवर और B का स्पीड है Q किलोमीटर पर आवर, देन A हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक्स B अ डिस्टेंस ऑफ। ओके, मतलब हमें ये फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय A बिफोर ही ओवरटेक्स B, मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है? डिस्टेंस विच इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट और नॉट? यस, स्पीड इनटू टाइम। यस, तो स्पीड तो मुझे पता है कितना स्पीड है, क्योंकि ये किसका फाइंड करना है? देन ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक्स बी, तो ए का स्पीड कितना है? व्हाट इज ए स्पीड? पी, पी यहां पर आ जाएगा इनटू, अब देखो टाइम आपको निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज टाइम फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपको सबको पता है कितना है, c है, और यहां पर स्पीड क्या होगा? दोनों कैसे चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? P माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू। ये वैल्यू को यहां पर लिख दो, C P माइनस क्यू। अब मुझे बोला आपका आंसर कौन सा होगा? फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी, PC P माइनस क्यू। राइट डाउन दिस, क्लियर दिस एवरीवन? दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। हमने P क्यों लिया? बिकॉज हमें ये पूछा है कि ए कितना ट्रैवल करेगा बिफोर ही ओवरटेक्स बी, इसलिए मैंने ए का स्पीड पकड़ा हुआ है P। और ये P माइनस क्यू स्टूडेंट्स कहां से आया पता है ना? बिकॉज दे बोथ आर मूविंग व्हाट?
सेम डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर दिस एवरीवन? Clear everyone this, student? Please do reply if this clear to you. Yes, great. Thank you so much. Thank you so much. नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पिंकू रीचेस हिज स्कूल 5 मिनट्स लेट। इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, he will be 5 minutes early. The distance of Pintus from his house क्या होगा? कौन करेगा ये, ट्राई करो। ओके, किरण सेज इट इज नथिंग बट 5 किलोमीटर। ओके, चलो हम लोग चेक करते हैं 5 है कितना है। 5 चलो लेट मी चेक क्या हो सकता है आंसर। ओके, देखो यहां पर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पिंटू रीचेस, देखो सपोज फिर से वही कंडीशन पे हम लोग आते हैं। सी प्लीज पे अटेंशन, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये हम लोग पकड़ लेते हैं x किलोमीटर। यस, और वॉकिंग यहां पर समझो उसका घर है हाउस, और यहां पर उसका स्कूल है। यस, वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पिंटू रीचेस स्कूल 5 मिनट्स लेट। जब वो घर से निकलता है कितने किलोमीटर पर आवर पे, 3 किलोमीटर पर आवर, तो 5 मिनट स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, लेट होता है। जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से चलता है, मतलब 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता है, तो वो स्टूडेंट्स 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, अर्ली। तो डिस्टेंस ऑफ पिंटू फ्रॉम हिज हाउस कितना है, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स यहां पर टाइम, टोटल टाइम कितना खर्चा हो रहा है। कितना होगा, टोटल टाइम कितना गया स्टूडेंट्स, 5 मिनट पहले का और 5 मिनट बाद का, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, 10 मिनट। वेरी गुड, मतलब 10 मिनट्स का डिफरेंस है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, T1 माइनस T2 विच इज इक्वल टू 10 मिनट्स। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 60 करो। मैंने 60 क्यों किया स्टूडेंट्स, ये यहां पर ध्यान में रख लीजिए, बिकॉज ये आपको टाइम मिला है मिनट्स में।
और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मतलब जब आपको किलोमीटर में करना है तो मिनट को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर, 1/60। तो यहाँ पर 10 मिनट, तो यहाँ पर 10/60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आवर में। अब डिस्टेंस को हमने एक्स पकड़ा है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। एक्स अपॉन स्पीड का वैल्यू पहले छोटा पकड़ो 3 माइनस एक्स अपॉन ये होगा 4 विच इज इक्वल टू 10/60, मतलब कितना होगा 1/6। अब क्रॉस करो 4x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 6 × 3 × 4। सॉरी, यहां पर 1/6 है ना ये, वेट अ मिनट, 1/6 इंटू 3 × 4 12 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6 2 जा 12। तो कितना किलोमीटर होगा स्टूडेंट्स, 2 किलोमीटर। राइट डाउन दिस ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दिस एवरीवन? तो एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड है। आपको समझा ना ये 12 कहां से आया स्टूडेंट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 4, जो यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। ये प्लीज हमेशा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हम लोग वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाला बेस को हम यहाँ पर ले जाएंगे। दिस इज नथिंग बट एक्चुअली बेसिक है। क्लियर एवरीवन दिस? तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो। यस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो स्टूडेंट्स इफ यू कैन। अ thief is spotted by a policeman from a distance of 100 मीटर। अ thief is spotted by मतलब एक चोर को एक पुलिस ने देखा और दोनों में डिफरेंस था 100 मीटर का। When the policeman started the chase, जब पुलिसमैन भागना चालू किया, the thief also starts running. If the speed of the thief is 8 km/h and that of the policeman 10 km/h, then how far the thief will have run before he is overtaken? तो यहां पर यह पूछा है कि thief कितना भागा है जब तक वो पकड़ में नहीं आए। करो फाइंड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। Anyone who will let me the answer for this? ओके, प्रतीक्षा कह रही सी। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? स्टूडेंट क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या बोला है स्टूडेंट्स, अ thief is spotted by a policeman from, देखो यहां पर सपोज आपका पुलिसमैन है और यहां पर सपोज आपका थीफ है, और इन दोनों में डिस्टेंस फिलहाल कितने का है, 100 मीटर का है। ये क्लियर है सबको? मतलब यहां पर स्टूडेंट्स ये क्या, यहां पर क्या कंफर्म हो गया कि थीफ इज
100 मीटर अहेड ऑफ व्हाट? पुलिसमैन। क्लियर एवरीवन? तो आप मुझे बताइए, अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, मैंने उसको अगर डी पकड़ा, डी मीटर, तो मुझे बताइए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन कितना होगा? टेल मी फास्ट, कितना होगा? हाउ फार थीफ विल हैव रन बिफोर हिज ओवरटेकन? तो कितना भागेगा? यस, वेरी गुड, प्रतीक्षा ने सबसे बढ़िया आंसर दिया है। अगर, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 मीटर, एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 मीटर आगे है, अगर समझो वो डिस्टेंस डी कवर करता है, तो पुलिसमैन को वो डिस्टेंस प्लस 100 मीटर दोनों कवर करना होगा। मतलब पुलिसमैन को कवर करना होगा D+100। वेरी गुड, तभी वो उसको पकड़ पाएगा। इज दिस क्लियर? लेकिन यहां पर एक चीज कॉमन स्टूडेंट्स, कि दोनों के लिए टाइम सेम है, जो यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। दोनों के लिए स्टूडेंट्स क्या है? टाइम यहां पर दोनों के लिए उन्होंने सेम दिया हुआ है, ये हमेशा ध्यान में रख लेना। क्योंकि टाइम सेम है, लेकिन स्पीड किसका ज्यादा है? पुलिसमैन का। तो उसी समय में वो पुलिसमैन 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चोर को पकड़ेगा, जिसका स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? टाइम 1 विच इज इक्वल टू टाइम 2 हो जाएगा दोनों के केस में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस अगर मैं पकड़ लेता हूं, सपोज डिस्टेंस कवर्ड बाय टी, ये डी है, तो उसका स्पीड कितना है? 8 दिया हुआ है। D1, D2, S2, T2 पकड़ लेता हूं पुलिसमैन का, D+100, तो उसका स्पीड कितना दिया है स्टूडेंट्स? 10 किलोमीटर। यस। अब अभी इसे सॉल्व करो, देखो क्या मिलेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये होगा, लेटस, और बेटर बेटर क्या करते हैं, 10D विच इज इक्वल टू 8D प्लस 800। तो 10D माइनस 8D कितना होगा? 2D विच इज इक्वल टू 800। सो D इज इक्वल टू व्हाट? 800 डिवाइड 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? 400। तो D किसका है? थीफ का, 400। राइट डाउन दिस। मतलब मतलब दिए हुए समय में अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय डी अगर 400 होगा, तो थीफ तो ऑलरेडी और 100 मीटर पीछे है, तो थीफ कितना कवर करेगा? मतलब पुलिसमैन कितना कवर करेगा? 500 मीटर। लेकिन आपको पूछा किसका था? थीफ का। क्लियर एवरीवन दिस? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। सेकेंड ट्राई करो, सेकेंड क्वेश्चन। I walk a certain distance and ride back, taking a total time of 37 minutes. I could walk both way in 55 minutes. How long would it take me to ride both ways? करो फाइंड स्टूडेंट ये।
ट्राई करो क्या आंसर होगा यहाँ पर। यस, क्या हो सकता है आंसर? आई वॉक सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक। देखो जाते समय स्टूडेंट यहां पर देखो, ओके भारती कह रही सी होगा, लेट मी चेक भारती, चलो पे अटेंशन। आई वॉक सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस है, वो चल के जा रहा है, और राइड बैक मतलब राइड करके आ रहा है। जाते समय वॉकिंग है, आते समय राइड है। तो यहां पर समझो मैंने एक लिख दिया वॉक प्लस राइड बैक कर दिया हमने। तो दोनों मिला के कितने में कर रहा है स्टूडेंट? तो मैं यहां से करता हूं, तो आई विल गेट अ स्टिक्स वॉक प्लस राइड बैक, दोनों मिला के कितने में कर रहा है वो? 37 मिनट्स। इज दिस क्लियर? यहां तक ये क्लियर हो गया आप लोगों को? दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला? आई कुड वॉक बोथ द वेज इन 55, मतलब मैं दोनों तरफ से वॉक कर सकता हूं। और कितने समय में होगा दोनों तरफ से वॉक स्टूडेंट? 55 मिनट्स। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस। अब मुझे बताइए, ये एक वॉक है और ये एक वॉक है, तो एक वॉक मिला कितना हो जाएगा? 2 वॉक। तो ये है 55 मिनट्स। अगर 2 वॉक के लिए 55 मिनट्स है, तो एक वॉक के लिए स्टूडेंट्स कितना होगा? 55/2 मतलब कितना हो जाएगा? 27.5 मिनट्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। अब जो आपको एक वॉक का वैल्यू मिला है, कितना मिला है? 27.5 मिनट्स। वो इसमें भर दो पहले इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन क्या है? 27.5 प्लस राइड बैक विच इज इक्वल टू 37 मिनट्स। 37 मिनट्स। अब आपको राइड बैक निकालना, एक साइड का तो राइड बैक मिल जाएगा। 37 में से ये माइनस करो 27.5, तो कितना मिलेगा स्टूडेंट? 9.5 मिनट। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। तो ये 9.5 मिनट मिला, ये स्टूडेंट्स मिला एक राइड बैक का। आपको क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज? अगर दोनों वैसे राइड करता, अगर एक राइड का 9.5 है, तो दो राइड का क्या होगा? 9.5 प्लस 9.5 कर दो, 19 मिनट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दिस एवरीवन? तो काफी अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने कवर किए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप लोगों को आने जरूरी है। क्लियर एवरीवन दिस? चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्रेन्स के ऊपर करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। वन मिनट स्टूडेंट। चलो वेट अ मोमेंट। यस। चलो
Is it visible to everyone trains के problems? Yes. Okay. It is visible now. See, this is problems on trains. Is it visible to everyone? Yes. Thank you. Thank you. Yes. अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है. देखो, मैक्सिमम टाइम पे ट्रेन्स पे ही आपको प्रॉब्लम आएंगे व्हेन यू गो फॉर हायर लेवल एग्जाम्स. Two trains, 165 meter, and other train is 135 meter long, run at the speed of what? 70 km per hour and 38 km per hour in opposite direction. The time in which they take to cross each other. अब देखो, हमें फाइंड करना है टाइम, और वो भी हमें करना है सेकेंड्स में. सो पहले आपको देखो ये पता होना चाहिए कि आपको टाइम निकालना है. व्हाट इज टाइम फॉर्मूला स्टूडेंट्स? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यस और नो? अगर आपके देखो, अब अगर आपके डिस्टेंस अगर यहां पर मीटर में दिए है, तो आपका स्पीड भी सेकंड में होना चाहिए. स्पीड भी किस में होगा? मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड में. लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर देखो, स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में. और ये कैसे चल रहा है? अपोजिट में. तो पहले आप फाइंड करो कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा. रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं. तो दे आर मूविंग इन अपोजिट. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट, हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो 70 प्लस 38 कितना होगा स्टूडेंट? 108 किलोमीटर पर आवर. ये सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर और नॉट? यस. तो ये हो गया 108. लेकिन मुझे किलोमीटर पर आवर का किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड. तो मैं क्या करूंगा? 108 को आई विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 5/18. तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था. तो 18 1 जा 18 6 जा, तो 6 × 5 कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट. तो ये आपका फाइनल हो गया रिलेटिव स्पीड. जब तक स्टूडेंट आप यूनिट एक नहीं करोगे तब तक आपका आंसर राइट नहीं होगा. देखो, अभी डिस्टेंस किस में है? अब एक डिस्टेंस 165 है, प्लस दूसरा कितना है? 130 है टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय स्पीड कितना है? 30. होप दिस क्लियर एवरीवन. तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 30. तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड्स. क्लियर एवरीवन दिस? तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. कॉन्सेप्ट बहुत आईएमपी है स्टूडेंट. Is this clear everyone? तो आपको ये समझ में आया रहेगा कि अपोजिट बोला है तो हमने स्पीड को ऐड किया. अब ये किलोमीटर पर आवर में था, जिसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, क्योंकि मेरा आंसर ही सेकंड में था, तो मुझे सारे यूनिट सेम करने हैं. तो ये मेरा 30 मीटर पर सेकंड हो गया. किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय करना है 5/18. ये 5/18 कहां से आया, कैसे आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है. टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस दोनों दिए तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर, और ये आपका है मीटर पर सेकेंड. तो बाय डिफॉल्ट मीटर मीटर कैंसर, बचेगा ओनली सेकेंड. तो आपका आंसर हो गया 10 सेकेंड. क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. बहुत क्वेश्चन, ये काफी अच्छा टॉपिक है. देखो, मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा, आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए मत पढ़ो स्टूडेंट्स. लर्न दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग न्यू थिंग्स. डू नॉट टेक प्रेशर ऑफ एग्जाम. आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है. आज कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, देन ओनली आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा होगा. ओके, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो. Two trains is moving in opposite direction at a speed of 70 and 80. अगेन देखो, अपोजिट बोला है तो स्पीड हमेशा क्या होगा? ऐड होगा. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका.
दूसरी चीज देखो, आपका आंसर है सेकंड में, तो ऑब्वियसली ये किलोमीटर पर आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड। ये आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। देयर लेंथ दिया हुआ है, सबका लेंथ, इसका 1.3 और इसका 0.7 मीटर किलोमीटर है। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड इज व्हाट, ये आपको निकालना है। करो फास्ट। ओके, चलो लेट्स पे अटेंशन स्टूडेंट्स, सी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, आपका ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में है और आपका स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दिया है, और एट द एंड उन्होंने पूछा कि सेकंड में कन्वर्ट करो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पहले क्या करेंगे कि टाइम को भी आवर में पहले निकाल लेते हैं, दैट वुड बी वेरी इजी। सो तो कैसे होगा, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर एवरीवन, व्हाट इज डिस्टेंस, 70 और 80, डिस्टेंस कितना है, 1.3 एंड 0.7 वुड बी 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। डिवाइड बाय 70 प्लस 80 कितना होगा स्टूडेंट्स, 150 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, तो आपका आपका जो टाइम होगा वो किस में होगा, आवर में होगा। तो टाइम कितना आया स्टूडेंट्स, 2/150, और विच कैन बी रिटन एज 1/75 आवर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? या आप इसको इफ यू कुड हैव, चलो ठीक है, नॉट एन इशू। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब आपको आवर का सेकंड में कन्वर्ट करना, बिकॉज आपका आंसर तो सेकंड में है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 3600 मैंने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600। तो यू कैन राइट लाइक दिस, थ्री, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 36 इंटू 100 वुड बी वेरी इजी। सो 36 इंटू 100 कर दो। अब देखो, 25 3 जा, 25 4 जा, 3 1 जा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, 48 सेकेंड्स। यस, राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? तो पहले हमने क्या कर दिया, पहले हमने टाइम को फाइंड किया और देन उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया।
नहीं तो आपको आइदर नहीं तो आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता था, या दोनों को आपको करना पड़ता था। बेटर क्या करो, पहले निकालो फिर बाद में कन्वर्ट करो, दैट वुड बी वेरी इजी। ओके, नाउ आई वांट एवरीवन शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आप सब लोग ट्राई करो। अ ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग पासेस अ पर्सन। कितने मीटर लॉन्ग की ट्रेन है? 75 मीटर लॉन्ग, एक आदमी को पास कर रही है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इन विच द ट्रेन इज गोइंग। इन हाउ मेनी सेकंड? 15 सेकंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालो फास्ट स्टूडेंट्स। क्या होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? अ ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग, देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन वी हैव 75 मीटर, राइट? रनिंग एट 6 किलोमीटर, ओके, पासेस अ पर्सन रनिंग एट 6, मतलब स्पीड ऑफ द पर्सन दिया है, क्योंकि देखो अ ट्रेन 70 में पासेस अ पर्सन और उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। ओके चलो, स्पीड ऑफ द पर्सन कितना होगा? 6 kph। यस, और यहां पर हमें ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हम लोग पकड़ते x kph। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों चल रहे सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली ट्रेन का स्पीड बड़ा होगा, तो x माइनस 6 kph। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ द, देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू पर्सन, रिलेटिव टू पर्सन कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 75, और कितने समय में क्रॉस करिए? 15 सेकेंड्स में। तो ये हो जाएगा 5 kph, 5 मीटर पर सेकेंड होगा ये, क्योंकि ये मीटर में है ना और ये सेकेंड में। अब इसको कन्वर्ट करो
किलोमीटर पर आवर, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, तो 5 गया, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया एवरीवन? और ये जो 18 किलोमीटर पर आवर आया है स्टूडेंट्स, यही विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रिलेटिव स्पीड ही है। तो 18 विच इज इक्वल टू x माइनस 6, तो ये 6 यहां पर आके प्लस होगा, 18 प्लस 6 कितना होगा 24, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीवन दिस? क्लियर एवरीवन? चलो इसको हम लोग रिपीट करते हैं। भाग्यश्री प्लीज पे अटेंशन। देखो, ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन स्टूडेंट दिया है 75 मीटर, और वो एक आदमी को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में? 15 सेकंड्स में। तो टाइम दिया है 15 सेकंड्स। तो हम लोग निकालते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू पर्सन, टू पर्सन क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 75, टाइम दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर एवरीवन? ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये आया मीटर पर सेकेंड में, आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 18/5 से, तो 5 कैंसिल होगा और ये आपका हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दिस एवरीवन? यस, ये 18 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मेन क्या है कि आपको वो स्पीड ऑफ द पर्सन भी दिया हुआ है, कितना है 6 kph, और डेफिनेटली यस ये 6 kph दिया हुआ है, और आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, जिसको हमने x पकड़ा था। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे, देखो, तो ऑब्वियसली x माइनस 6 ही होगा, बिकॉज ट्रेन का स्पीड बड़ा होगा, और ये जो रिलेटिव स्पीड आया उसका वैल्यू इक्वल टू 18 है। तो x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 24। क्लियर दिस? यस, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इट्स ऑलरेडी 9:30। काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने आज कवर किए, कल भी हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे बेस्ड ऑन दिस। सो डू नॉट मिस एनी सेशंस ऑफ माइन, प्लीज बी अटेंटिव। अगर आपका कोई भी सेशंस मेरा अगर आपका लेक्चर मिस होता है तो प्लीज डू वॉच रिकॉर्डिंग। Clear everyone? And every day we are uploading current affairs videos of 10 minutes. I would request each and every students, please go through those videos. Thank you everyone, thank you for joining. It was really a wonderful session with you all. Okay, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टॉपिक।